ओम श्री धन्वंतरिये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Esteemed Chief Guest, Honorable Member Board of Governors, Central Council of Indian Medicine, Honorable Managing Director, Engineer Purushottam Sir, respected Principal cum Medical Superintendent, Dr. Harsha NM Sir, admirable teaching faculty, and dear students. It's a lovely Wednesday evening. It's a lovely Janmashtami evening. So with this, good evening and namaskar one and all. How are you all? Hopefully you all are good and doing great as you always do. I have the privilege of being your host for today's web conference. Myself, Dr. Pil Sharma, welcoming you all for National Ayurveda Web Conference Rachna Sangamam Rachna 2020, conducted by Shiva Ayurvedic Medical College and Hospital, Chandpur, Bilaspur. With this, I would like to say that light and brightness has always been equated with positivity, and motivation is seen as the harbinger of good. To start us off on auspicious note, we will now have the Jyoti Prajolana lamp lighting ceremony. May I please request the digital lamp lighting, please. कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. Well, this was the digital lamp lighting ceremony. As one song can change a moment and one idea can change the world, one step can start a journey, but a prayer can change the impossible. Sometimes our prayer is like help us, sometimes our prayer is thank you. Always our support, our help is just a prayer away. So I invite BMS students for Dhanvantari Vandana. Om Namami Dhanvantri Adidevam Suravasuri Vanditam Padapādam Loke Sarāyam Mrityunasham Tatarvasham Vivedaushadhina Dhanvantri Ramanatham Sarvaroge Nivarakam Ayurved Pravaktaram Vande Piyusham Darakam Sarve Jana Sukhino Bhavantu Sarve Santhu Niramantu Om Shanti 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 And it's not easy to share your Thank you, students. Hope Lord Dhanvantari will bless us with health, happiness, and prosperity. If your action inspire others to dream more, to learn more, to do more, and to become more, you are a leader. To proceed the event, I will be calling upon our wings of light, our pillar of strength, and our constant source of motivation. I cordially invite Dr. Harsha NM
Principal cum Medical Superintendent, Shiva Ayurvedic Medical College and Hospital, Chandpur, Bilaspur, to welcome Honorable Chief Guest and Honorable MD Sir. May I request Dr. Harsha NM for welcome address, please, sir. Telling us it's not okay to be anything but perfect. Thank you, Dr. Kapil. Truth is, everyone has Good evening to all. that can be hard to deal with. Now that Ayurveda is being looked up as a silver lining in the sable cloud of the pandemic, Challenges it becomes the duty of all of us to share the knowledge and enhance the knowledge. struggling. With the same motive, a national webinar series on Rachana Sharira, Rachana Sangamam, Rachana 2023 has been organized by Shiva Ayurvedic Medical College. And we all have gathered here now for the inaugural function. Feel supported. I take this opportunity Maybe then more of us could feel to welcome a renowned Ayurvedic expert, Vaidya Shri Rakesh Panditji, get to help Amy. who has kindly consented to deliver a keynote address on this occasion. Physical health, but Vaidya Rakesh Panditji is a very busy Ayurvedic enthusiast known for his roles as a practitioner, as a researcher, and author in the field of Ayurveda, based on which he has been rightly appointed as a member of the current Board of Governors of CCIM New Delhi. Secondly, I would also welcome our Managing Director, Shri Purushottam Sharma sir, who has been the guiding force behind us in all our endeavors. Any constructive idea doesn't go unsupported by our MD sir, because of which within a short span of time, the college has been able to make a mark. Next, I would welcome all the teaching staff for this function who always have lent unflinching support. Last but not the least, I welcome all the students, the resource persons, faculty, and students from all over the country who are going to be the stakeholders of the bounty resulting from these 20 days of knowledge feast on Rachana Sharira. Welcome to you all once again. Thank you. We also welcome you to the occasion, sir. Thank you for welcome address, sir. Now I invite my colleague and a very nice human being, Dr. Anup Kumar K, who is Assistant Professor in Department of Shalya Tantra, to give an introduction on the webinar series. Dr. Anup K. Thank you, Dr. Bapal. With blessings of Lord Dhanvantari, support of management and cooperation of faculty of Shiva Ayurvedic Medical College and Hospital, Department of Rachana Sharira is proud to commence Rachana Sangamam, a national level web conference starting today for the next 20 days. Knowledge of anatomy is the base of medical science. With that motive, Rachana Sangamam was planned to enhance the knowledge of anatomy among our students and other audience. We have tried to rope in resource persons belonging to Ayurvedic colleges, medical colleges and dental colleges across the country for enhanced experience and among listeners. We have planned 9 sessions with nearly 30 hours resourceful lectures, which would surely help the students. The college in general and the department in particular feels indebted to all resource persons who are going to deliver the knowledge. We appeal students to take full advantage of this. Thank you all. Thank you, Dr. Anup Kumar K. Well, future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, and all these dreams can come true when one have courage to pursue them, to fulfill them. Dear audience, now it is my immense pleasure to welcome today's keynote speaker, Vaidya Rakesh Pandit Sir, Honorable Member, Board of Governors, Central Council of Indian Medicine. Sir has completed his UG from DAV College, Jalandhar. Sir has completed his MS from Banaras Hindu University, has Yog Upadhi Patra from BHU Varanasi. Sir had the PhD in Himalayan medicinal plants. Sir is having total professional experience of 35 years. Sir has served HP government as an Ayurvedic medical officer for 35 years, then as a senior consultant and
then as a retired as a deputy director in 2012. Then sir joined the Health and Family Welfare Department, and sir joined the department as an advisor. Presently, sir is Honorable Member, Board of Governors, Central Council of Indian Medicine, and serving as a National Secretary in Arogya Bharati and Chief Executive Officer in Himalayan Foundation for Integrative Health. Sir is awarded with various awards like a Medical Excellence Award in 2000. Sir got the Special Alumni Award in 2001. Sir is awarded with Aryabhatta Award by Shri Murli Manohar Joshi in 2009. Sir is awarded with Nobel Prestigious Award and title of Master in Ayurveda Practice in 2010. Sir is having special interest in anorectal surgeries, and sir is having interest in studying the various herbal medicines. Sir has participated in more than 157 seminars. Sir has presented 117 research articles with critical analysis and published 73 articles and published 9 books. So may I please request you, sir, for the keynote address. Dr. Rakesh Pandit, sir. Thank you very much, Dr. Bhapin. आज के रचना संगमम 2020 के कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर बहुत ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि एक बड़े ही अच्छे ढंग से आप जैसे बहुत दिन के लिए आपने एक वेबिनार सीरीज एनाटॉमी के ऊपर ऑर्गेनाइज की है शिवाय आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और टीचिंग स्टाफ द्वारा। मैं आप सबको बधाई देता हूं। सबसे पहले इतना अच्छा एक स्टेप स्टूडेंट की वेलफेयर में और टीचिंग की वेलफेयर में उठाने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं कभी भी टीचर नहीं रहा, इसलिए अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो तो टीचर लोग जरा उसको इग्नोर कर देंगे। मैं अपने अनुभव के आधार के ऊपर जो मैंने अलग अलग स्थानों के ऊपर काम किया है उसके आधार के ऊपर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कॉलेज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा, प्रिंसिपल मिस्टर NM हर्षा तथा फैकल्टी के अन्य मेंबर्स और बहुत भी दूसरे लोग भी कुछ जुड़े हैं इसमें, और साथ में स्टूडेंट्स। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि मुझे स्क्रीन शेयर करने की ऑप्शन प्लीज दी जाए। May I share the screen? May I share the screen, please? Okay. Thank you very much. I was asked to speak something on this occasion. So I have prepared some information regarding what is Ayurveda present, past, present and future. I will share something with the students and you people. This is the very good logo this your organization has prepared. Thank you. हमारे इतिहास में यदि हम नजर मार के देखें तो प्रकृति और औषधीय पौधों का स्वास्थ्य का बहुत पहला स्थान है। हम देख रहे हैं एक महिला तुलसी के पौधे को पानी दे रही है। ये हमारे जीवनचर्या का हिस्सा वर्षों से चला आ रहा है। जब से मानव जाति का उद्गम इस धरती पे हुआ है तभी से लेकर
औषधीय पौधे या दूसरे पौधे हैं उनका औषधीय प्रयोग करने की परंपरा धीरे धीरे डेवलप हुई और आगे से बढ़ते 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 और एक बहुत ही विकसित विज्ञान के तौर पे हमारे सामने आई। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर विकसित हुई भारतीय जीवन शैली में अनेकों विलक्षण परंपराएं हैं, जिनमें से एक ये भी है तुलसी के पौधे को पानी देना, घर के आंगन के बीच लगाना, और जब हम पूजा स्थल पे कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमें जो चरणामृत या प्रसाद दिया जाता है उसमें एक तुलसी का पत्ता भी रहता है, और एक श्रद्धा वश होकर उस जो प्रसाद है या चरणामृत है उसमें तुलसी के पत्ते को भी ग्रहण करते हैं, बिना जाने कि इसका क्यों हम लेते हैं। तो जबकि हम जानते हैं कि तुलसी के पौधे में इतने अच्छे गुण हैं, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनिटी के लिए काम करता है, इसके बीज डायबिटीज में काम करते हैं। तो ये सब जो गुण थे हमारे पूर्व जो ऋषि मुनि थे उनको ज्ञात थे, उन्होंने इनका नियमित प्रयोग हम कर सके इसलिए ऐसी परंपरा हमारे यहाँ डाली। ये परंपराएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए सहायक है। हजारों हजार वर्ष से इस भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे विज्ञानविद ऋषि मुनि अवतरित होते रहे हैं, जिन्होंने अपने अध्ययन एवं तप के बल पर, तप मेरा कहने का मतलब है शोध अनुसंधान जो सर्च वो करते थे, उसके बल के ऊपर प्रकृति के एक और रहस्यों को उजागर किया, जो मानव जाति की नहीं परंतु समस्त जीवन कल्याण के लिए आज तक हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। औषध विज्ञान भी इसी प्रकार के तपस्वियों के, गुणी ज्ञानी विद्वान जनों के शोधों की उपज का नतीजा है, जिन्होंने प्राचीन काल से ही आयुर्वेद को अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। हम यदि आज से 500-1000 साल पहले की बात करें तो आयुर्वेद ही था उस समय चिकित्सा की एकमात्र पद्धति, और उससे लगभग हर एक तरह की बीमारी का, चाहे शल्य चिकित्सा हो चाहे दूसरी हो, उसका उपचार आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता था। इसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि एवं दिव्य दृष्टि ज्ञान एवं अनुभव से विकसित हुई आयुर्वेद विज्ञान ऐसा था जिसने ऋषि मुनियों ने दक्ष के कटे हुए सर को पुनः जोड़ दिया था। उसकी जगह पुनः नहीं जोड़ा उसको, उसकी जगह बकरे का सिर लगा दिया था। इसी तरह हम इसका प्रमाण हमारे इतिहासों में है। हम सब सुनते हैं कि गणेश जी का सिर जब काट दिया था तो उसके स्थान के ऊपर हाथी का सिर ट्रांसप्लांट किया था। ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी, जो कि आयुर्वेद शास्त्र के जो उस समय के ज्ञाता थे उनको ऐसी कला, ज्ञान, स्किल और साइंस जान मालूम थी, जिसके बल के ऊपर उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े कार्य किए, जो कि शायद आज भी उतना संभव नहीं है। इतिहास में भी पृथ्वी पर एनाटॉमी की स्टडी सबसे पहले डायसेक्शन करने का उल्लेख कहीं मिलता है तो भारतवर्ष में ही मिलता है। वो भी आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक सुश्रुत के नाम ही जाता है, जिनको आज हम सब जानते हैं फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व आयुर्वेद और आयुर्वेदिक वनस्पतियों का ज्ञान था, जिसके माध्यम से हम सब जानते हैं सुषेण वैद्य, लंका का जो वैद्य थे, उन्होंने हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी वटी लाने के लिए कहा था, क्योंकि भगवान जो लक्ष्मण थे वो मूर्छित हो गए थे। ये मैं आपको कैप्शन दिखा रहा हूँ, ये शिमला का जाखू मंदिर है। ऐसी कहावत है कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए आए थे और शिमला में जाखू पर्वत के ऊपर वो रुके थे और उन्होंने इस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके बारे में सुषेण जी कहते हैं, दक्षिणे शिखरे जाता महोषधि में नया विशल्य करणी नामा सावर्णे करणी तथा संजीव करणी चैव संधानी च महौषधम। ये बाल बीच में मुझे होस्ट ने म्यूट कर दिया था, प्लीज। तो इसमें जो पहले वाली स्लाइड में ये बताया था कि हनुमान जी जब गए दक्षिण हिमालय पर्वत के ऊपर, उसमें उन्होंने संजीवनी बूटी नाम की 4 तरह के औषधीय पौधों का उसमें वर्णन मिलता है। एक विशल्य करणी, जो कि कोई भी फॉरेन बॉडी है
उसको शरीर से बाहर निकालती है। सवर्णकरणी उसकी कॉस्मेटिक जो अपीयरेंस है उसको ठीक करने के लिए है, जोड़ने के लिए है। संजीव करणी मूर्छित है या कोमा की अवस्था में उसको पुनः जीवित या उठाने के लिए, तथा संधानी यानी जोड़ने के लिए, कोई भी वुंड है उसको स्टिचिंग करना, उसको जोड़ना तथा उसको ठीक करना। ऐसे ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन, ऐसा ऐसा ज्ञान हमारे शास्त्रों में हजारों हजार वर्ष पूर्व पहले से मिलता है। जीवन लाने के लिए जब कहा हनुमान जी को, तो हमसे सब जानते हैं कि कोमा में थे उस समय हनुमान जी। कोमा में जब थे तो सुशील वैद्य जी ने कहा कि आप लेके आओ सूर्य अस्त से पहले पहले, ताकि इनको जो मूर्छित हैं उससे वापस लाया जाए। इसमें और भी वाक्य छिपा है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि उनको ये मालूम था कि कोमा में गया व्यक्ति को यदि इस तरह की चिकित्सा हम देते हैं तो वो इतने समय के अंदर अंदर कोमा से बाहर आ सकता है। लेकिन आज विज्ञान जबकि इतना आगे पहुंच चुका है, लेकिन कोई भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि कोई कोमा में गया हुआ व्यक्ति कितनी देर में वो कोमा से बाहर आएगा। और कई बार तो सालों तक ऐसा देखा गया कि कोमा में ही रहता व्यक्ति। आज कहने का भाव ये है कि ज्ञान विज्ञान एवं चिकित्सा के अनेक इतने शिखर और सर्वोच्च शिखर पे होने के कारण भारतवर्ष का ये ज्ञान दास्तां तथा अन्य कारणों से धीरे धीरे गिरावट की ओर गया। और एक ऐसा समय आया जबकि हम अपना अस्तित्व ही भूल गए, और बीच में ऐसा समय आ गया जबकि कुछ देशों ने या कुछ लोगों ने तो इसको एक चिकित्सा पद्धति मानना ही बंद कर दिया। इसको ये कहा कि ये तो ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज है और कुछ लोगों को पता है, उससे आगे ये उपचार करते हैं। बल्कि जो सिस्टमेटाइज्ड एक स्टेटस था आयुर्वेद का बहुत वर्षों पहले, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया और बहुत ही निचले स्तर के ऊपर हम सब आ गए। इस दास्तान की कुछ चक्कर में फंस के हमने अपना बहुत कुछ खो दिया। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी लो प्रोफाइल में रहते हुए ही सही, आयुर्वेद की जो अविरल धारा है इसके विज्ञान की, इसके ज्ञान की, वो लिप्त नहीं हो पाई भारतवर्ष में। गुरु शिष्य परंपरा हो, चाहे गुरुकुल जैसे शिक्षा प्रणाली हो, गुणी वैद्यों, स्थानीय पारंपरिक चिकित्सकों, इनके माध्यम से ये ज्ञान कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक गुरु परंपरा से दूसरे शिष्यों को, शिष्यों से फिर आगे, इस तरह चलता चलता आज की वर्तमान स्थिति में आया है। समय करवट बदलता है, तो पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि करवट बदली है समय ने, और आयुर्वेद एक बार फिर जाग उठा है, जिसके कारण बहुत सी ऐसी बातें जो कि कल पिछले पहले जिनको अंधविश्वास या अवैज्ञानिक माना जाता था, और आज वो विज्ञान की स्थिति में बिल्कुल खरी सिद्ध पाई जा रही हैं। और ऐसी बातें सिद्ध पाई जा रही हैं जिनके बारे में हमने भी कभी सोचा नहीं था। हमने देखा कि पिछले 60-70 वर्ष में फिर से आयुर्वेद ने अंगड़ाई ली है, तथा आज की स्थिति में अपना विश्वास जो कहीं खो गया था उसको प्राप्त करने की जगह हम अच्छे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में आ गए हैं। तो बात यह है कि हमारे देश भारतवर्ष में अनेकों शताब्दियों के बाद एक ऐसा समय आया है जब भारतीय अपने अतीत ज्ञान विज्ञान तथा आयुर्वेद की ओर देखने में गौरव महसूस कर रहे हैं। वी आर कंसिडर्ड एज ए वेरी बैकवर्ड, अंधविश्वासी, आवारा, या जिसको कह रहे ट्राइबल्स के रूप में, या ऐसा देश जिसमें गौएं चरती रहती हैं सब जगह और स्पेरो का देश, ऐसा माना जाता था। लेकिन आज वो धारणा धीरे धीरे बदल गई है। आज सत्य से सारी दुनिया भारतीय ज्ञान विज्ञान विचार तथा आयुर्वेद की ओर बड़ी आशा की तरह देख रही है। मात्र आयुर्वेद ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तो ये लगने लगा है कि वासुदेव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो पाठ हम प्रातः उठकर रोज करते हैं, वो सचमुच में मानव कल्याण के लिए है, जो भारत की संस्कृति से, भारत के विज्ञान से हमको मिलता है। और ऐसा लगने लगा है, हम सब जानते हैं कि जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें भारत पुनः पूरे देश, दुनिया का, विश्व का, ग्लोब का नेतृत्व करने वाला है। और कई चीजों में तो हम कर भी रहे हैं आज की स्थिति में। आप सब जानते हैं नासा द्वारा पिछले दिनों जो भी नासा में काम करेगा उसके लिए 15 दिन का संस्कृत लर्निंग कोर्स एक उन्होंने अनिवार्य कर दिया है, जिसके कारण वो जो मॉडर्न साइंस है उसको समझने में
आसानी आती है। ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है वर्ल्ड कम्युनिटी द्वारा, जिससे कि आयुर्वेद को बहुत बल मिला है, भारतीय संस्कृति को बल मिला है। ग्लोबल कम्युनिटी ने पुनः योग और प्राणायाम को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसको रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर सारी दुनिया के देशों ने निर्धारित समय के ऊपर जो भी प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया गया था इसके लिए, उसको अडॉप्ट किया, उसके अनुसार योग किया, और बहुत सारे लोग योग नियमित करते हैं, जिसके कारण बहुत से लाभ वो उठा रहे हैं। पहले टाइम में हम क्या सब जानते हैं, योग को बहुत ही गुप्त, गूढ़, अंधविश्वासी, साधु संतों की एक धार्मिक उपाय ऐसे इस तरह से माना जाता था कि आम आदमी इसको योग को नहीं कर सकता। लेकिन समय ने करवट बदली और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, और बहुत सारी दुनिया के लोग इसके पीछे पड़े। इसके जो अच्छाइयाँ थी उसको उन्होंने जाना पड़ा, और साथ साथ में इसके ऊपर खोज प्रारंभ की। इंटरनेशनल के साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत से रिसर्च पेपर्स और रिसर्च स्टडीज योग के ऊपर की हैं। यहाँ तक कि जो हमारी मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको उसकी सक्रीशन को कैसे रेगुलेट करना, कैसे घटाना बढ़ाना, ये योग के माध्यम से हो सकता है। ऐसा उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध कर दिया है। और भी बहुत सारे उदाहरण हम सब देख सकते हैं, हमको मिलते हैं। यूएसए की इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, वहाँ पर एक उन्होंने रिसर्च की योग के ऊपर। उन्होंने ऐसा कहा कि 10 मिनट अनुलोम विलोम तथा 10 मिनट ध्यान श्वास, अटेंटिव ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, डीप ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग भी उसको कहते हैं, इसका अभ्यास उन्होंने 8 हफ्ते तक 2 ग्रुप्स के ऊपर करवाया। एक को ये सारा करवाया 10-10 मिनट अनुलोम विलोम तथा 10 मिनट गाइडेड ब्रीदिंग करवाई, और एक ऐसा ग्रुप था जिनको नहीं कराई। और उसके बाद आश्चर्यजनक जो परिणाम उन्होंने वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने रखे हैं, जिससे सारी दुनिया योग और प्राणायाम का जो महत्व है उसको मानने लगी है। ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे रिसर्चेज हुई हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो लोग नियमित तौर पे प्राणायाम और योग का अभ्यास करते हैं, उनके ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है उसकी जो क्वांटिटी है बढ़ती है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, उसकी वर्किंग बढ़ती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और हम सब जानते हैं जिसका ग्रे मैटर ज़्यादा होगा वो आदमी मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, अटेंटिव होगा, उसकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी, उसका किसी भी विषय को जानने का जो फोकस है वो भी बड़ा क्लियर होगा, और बहुत सारे अलग अलग विषयों को बहुत तेजी से वो ग्रहण कर सकता है। और वैज्ञानिक लोग तो यहाँ तक भी बताते हैं कि जिनका ग्रे मैटर बढ़ जाता है योग के माध्यम से, उनकी ना केवल आयु बढ़ती है परंतु पास्ट और फ्यूचर में जो होने वाली घटनाएं हैं उनको स्मेल करने की, उनको प्रेडिक्ट करने की शक्ति भी योग के माध्यम से आती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वैज्ञानिक तथ्यों ने सिद्ध कर दिया है। तो कहने का भाव ये है कि योग और प्राणायाम को दुनिया ने एक्सेप्ट किया है एक मॉडर्न साइंस के तौर पे, एक मॉडर्न कंटेक्स्ट में आयुर्वेदिक साइंस इसको माना है। इसलिए बहुत ही अच्छा एक इतिहास जो हमारा पहले था, बीच में किसी कारण से गिरावट आई, आज फिर हम शिखर की ओर जा रहे हैं। और आगे तो रही सही कसर तो इस कोरोना ने पूरी कर दी। इस सारी आगे बढ़ने की दौड़ में आयुर्वेद को, हम सबको लग रहा था कि आयुर्वेद कहीं पीछे छूट रहा है, लेकिन कोरोना महामारी में तो आयुर्वेद को सारे वर्ल्ड में चिकित्सा क्षेत्र में पटल में सबसे अग्रणी फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा कर दिया है। आज दुनिया भर में जितनी भी रिसर्च कोविड वायरस के ऊपर हो रही है, कोरोना वायरस के ऊपर हो रही है, उसमें अधिकतर जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 100, अभी ये लेटेस्ट पिछले वीक की मैं खबर आपको ये एक न्यूज़ बता रहा हूँ, किसी रिसर्च जर्नल में मैंने पढ़ी थी कि 125 मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्टिवली कोरोना वायरस के अगेंस्ट, कोविड के अगेंस्ट रिसर्च हो रही है। और जो इनिशियल उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग है। बहुत सारे प्लांट्स ने काफ़ी प्रॉमिसिंग उसमें रिजल्ट दिखाए हैं, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जल्दी ही आने वाले समय में हम देखेंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से कोविड की दवाई मार्केट में मिलने लगेगी। ऐसे भी बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो प्लांट बेस्ड है। हम जानते हैं
डिजिटालिस है, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, फॉक्स ग्लोब जिसको कहते हैं, डिजिटालिस पर्पोरिया, आयुर्वेद में इसको हरित पत्री कहते हैं। इससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए डिजॉक्सिन नाम की एक दवाई बनती है। इसी तरह जो जिससे बैट बनते हैं, जिस लकड़ी से, बिलो की लकड़ी से बनते हैं ना बैट, तो सेलिक्स एल्बा जो लकड़ी है उससे एस्प्रिन नामक की दवाई बनाई जाती है। हम जानते हैं कुनीन जो मलेरिया के लिए यूज होती है वो सिनकोना प्लांट से बनती है। इसी तरह हाइपरटेंशन के लिए रेसरपिन, ये भी सर्पगंधा नामक प्लांट से बनती है। इसी तरह जो क्लॉटिंग होती है ब्लड में, उसको रोकने के लिए एक जो एक्टिव प्रिंसिपल आजकल मार्केट में है कैमाडिन के नाम से, वो मेडिकावो स्टाइवा नामक एक प्लांट है, उससे बनता है। इसी तरह सदाबहार, सदाफूली जिसको हम कहते हैं, विंका रोजा, इसकी स्पीसीज से ल्यूकीमिया के लिए दवाई बनती है, विनक्रास्टिन। तो ब्लड कैंसर है उसके लिए दवाइयां भी इस प्लांट से आजकल बन रही हैं। फिर हिमाचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है टेक्सस वेल्शियाना, आयुर्वेद के छात्र आप सब हैं, आपको पता होगा, इसको तालीस पत्र भी कहते हैं। तालीस पत्र से की छाल से एक एक्टिव प्रिंसिपल निकलता है जिसको टॉक्सोल कहते हैं। तो ये टॉक्सोल है, ये ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही प्रभावी और क्योरेबल रेमेडी सिद्ध हुई है। तो ऐसे अनेकों ऐसी दवाइयां हैं जिनके माध्यम से आयुर्वेद जो है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे प्रमाण हमको मिलते हैं। आज की डेट में कोरोना के दौरान 65% से ज्यादा अमेरिकन जो है वो रिलाई कर रहे हैं हर्बल मेडिसिन के लिए, चाहे वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो कोई और मेडिसिन की जगह सिर्फ आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन को प्रेफर कर रहे हैं। ये एक जर्नल की रिपोर्ट है। और बाकी दुनिया में भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई कंट्री में तो 80% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो हर्बल ड्रग्स को प्रेफर कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। सारे दुनिया वर्ल्ड मार्केट में आज तुलसी, गिलोय और इस तरह की जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां हैं, इवन च्यवनप्राश की भी बहुत शॉर्टेज चल रही है। इतनी कमी हो गई है कि लोग इसके ऊपर इसका प्रयोग करने के लिए सारी दुनिया में टूट पड़े हैं। जैसे मैंने कहा कि 125 मेडिसिनल प्लांट्स आज अलग अलग वर्ल्ड की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से रिसर्च हो रही है, क्लिनिकल ट्रायल भी हो रही है इसके ऊपर, तो जल्दी इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। आप जानते हैं चीन से जो वायरस आई थी कोरोना, उसमें वुहान शहर से वो निकली थी। आज एक मैंने ये भी रिपोर्ट लेटेस्ट है कि चीन में लगभग 91.5% लोकल लोग जो है वो कोविड के दौरान उन्होंने मेडिसिन प्लांट बेस्ड जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग किया। आप सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी आयुर्वेद की तरह ही औषधीय पौधों के ऊपर काम करने वाली और उससे उपचार करने वाली एक पद्धति है जो कि काफी मशहूर है। तो उसके माध्यम से जो मेडिसिन प्लांट से बनने वाली औषधियां हैं वो है। कहने का भाव ये है कि आयुर्वेद और आयुर्वेद से संबंधित जो भी हमारी विधाएं हैं उनके कारण आज दुनिया भर में आयुर्वेद का बहुत चर्चा है। भारत सरकार भी इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि कोरोना में जो एक आयुष काढ़ा आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड किया था, एडवाइजरी जारी की थी उसको प्रयोग करने के लिए, उसकी इतनी डिमांड है कि लोग बहुत उसका फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली में 80,000 पुलिस कर्मचारियों को वो काढ़ा दिया गया और उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ। इसी तरह हमारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश इंस्टीट्यूट है दिल्ली में आयुर्वेद का, वहां पर भी इस आयुष काढ़े तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा जो रिसर्च की गई उसके जो इनिशियल रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक जिन्होंने आयुष काढ़ा तथा आयुर्वेदिक जो प्रोटोकॉल था उसको फॉलो किया, उनमें से कोई भी पॉजिटिव जो था बाद में वो सब के सभी नेगेटिव हो गए। कहने का भाव ये है कि बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रयोग आयुर्वेद औषधियां का जिनके प्रयोग से कोरोना जैसी महामारी में भी आयुर्वेद एक सशक्त अल्टरनेट तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा फ्रंट लाइनर एक रेमेडी के रूप में सारी दुनिया के सामने आया है। भारतवर्ष में तो इसका है ही। ये सब कुछ औषधि पौधों की लिस्ट है जिसके ऊपर आज कोरोना में काम हो रहा है। मुलट्ठी है, हम सब जाते हैं, कतीरा है, एस्ट्रेलगस है, इस प्लांट की रूट से निकलने वाला है। फिर जूही का पौधा है, मधुमती जिसको हम बोलते हैं। फिर जंगली पुदीने की 2-3 वैरायटी हैं जिनमें से औषधीय गुणों के कारण इसके ऊपर कोरोना के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो वो स्टेवन कैबिन नामक है। फिर जो हिमालय में है, किन्नौर लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली जंगली खुरमानी है, खुबानी जिसको चुली बोलते हैं हम आम भाषा में, तो चुली एप्रूनस आर्मेनिया का, इसके से भी कोरोना के बारे में रिसर्च आजकल चली हुई है। इस तरह हिम चंपा है, मंगोलिया जो वैरायटी है प्लांट्स की। इसी तरह और बहुत सारे प्लांट है जिसके माध्यम से कि रिसर्च आज चल रही है। इसमें कॉमन जो हम
दिन प्रतिदिन आपस अपने खाने में प्रयोग करते हैं, मसाले, स्पाइसेस जिनको बोलते हैं, जबकि ये बेसिकली तो मेडिसिन ही है। तो इनके कारण भी बहुत सी जो हमारी इम्यूनिटी से संबंधित समस्याएं हैं, कोरोना में भी इसका लाभ मिल रहा है। ये देखिए काली मिर्च है, मग है जिसको पाइपर लोमन कहते हैं हम, ये दालचीनी हम सब जानते हैं, तेज पत्ता है, हल्दी है। हल्दी के बारे में तो क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर सर्च हो रही है ऐसी पौधों में से हल्दी भी टॉप के ऊपर है। गिलोय भी है और हल्दी भी है, अश्वगंधा भी है। हल्दी के बारे में हम सब जानते हैं, हल्दी हम खाने में तो रोज प्रयोग करते हैं। एक बीमारी का आपने नाम सुना होगा, अल्जाइमर डिजीज जिसको बोलते हैं, अल्जाइमर। इसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल जाता है। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर भी आई थी ब्लैक, उसमें भी उनको ये याददाश्त तो भूल जाते हैं, वो बिल्कुल उनको मालूम नहीं रहता। तो इस तरह की जो भारतवर्ष में ये बीमारी सबसे कम पाई जाती है। एक सर्च स्टडी हुई, उसमें ये खोजने की कोशिश की गई कि भारतवर्ष में ये सबसे कम क्यों है। तो देखा उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि क्योंकि भारत के लोग हल्दी का नियमित प्रयोग अपने खाने में, अपने मसालों में करते हैं, इसलिए हल्दी जो है वो अल्जाइमर डिजीज को रोकने में एक बहुत ही अच्छा उपचार है, उपाय है। इसलिए हल्दी तो बहुत इफेक्टिव चीज है, बड़ी अच्छी है। हल्दी पेन किलर भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी एलर्जिक भी है। एक और स्टडी का मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए इसकी स्टडी हुई काफी रोगियों के ऊपर। तो उसका जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने कहा कि हल्दी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कुरकुमिन कहते हैं जिसको, कुरक्यूमिन आजकल बहुत कॉमन है, इसके कैप्सूल भी बाजार में मार्केट में मिलते हैं। यदि 500 मिलीग्राम कुरक्यूमिन का सुबह शाम प्रयोग करते हैं हम, तो उसका इफेक्ट आइबोप्रोफेन, ब्रूफेन तथा डेक्लोफेनेक जैसी जो औषधियां हैं उससे कहीं ज्यादा इसका इफेक्ट पाया गया है। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। इसलिए हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पुरानी परंपरा थी, जब भी किसको चोट लगती थी तो उसको हल्दी वाला दूध दिया जाता था। आज भी हल्दी बहुत कॉमन है। आज ही मैंने समाचार देख रहा था सुबह, हिमाचल सरकार ने जो हिमफेड है ना, हिम मिल्क नामक एक संस्था है, हिमाचल सरकार की एक कॉर्पोरेशन है, उन्होंने हल्दी मिल्क आज से एक पैक, टेट्रा पैक में निकाल दिया है लोगों के यूज के लिए। आप इसी से जान सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस हल्दी की है। और यूरोपियन कंट्री में तो गोल्डन मिल्क के नाम से मिलता है, लगभग एक गिलास इसका $9 से $10 तक मिलता है वहां पर टेट्रा पैक में। तो ऐसे ऐसे गुणकारी चीजें हैं। ये गिलोय है, हम सब जानते हैं इस बारे में। वासा है, एदोटोडा वासिका, बसूटी, हमारे यहाँ हिमाचल में तो कहावत भी है, जेथी बना बसूटी बरिया तेथी मानू किया मरिया, यानी कि यहाँ पर बना बसूटी यानी निर्गुंडी, जिसको बना निर्गुंडी है, संभालू जिसको बोलते हैं, वाइटेक्स निगुंडो, वासा एदोटोडा वासिका, बांसा भी बोलते हैं इसको, बरिया बच को बोलते हैं, बच एकोरेस कैलेमस। हमारे जो कहावत है उसमें ये कहा है कि यहाँ बसूटी यानी वासा, निर्गुंडी तथा बच, ये 3 पौधे हो जाए तो वहाँ किसी भी व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति का, उसका उपचार हो सकता है और उसको मरने से रोका जा सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ है। एक और ही महत्वपूर्ण पौधा है, हमारे हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसका नाम हम सब जानते हैं, छांबर के नाम से इसको जानते हैं। आयुर्वेद में इसको अफसंतीन कहते हैं, अफसंतीन, आर्टिमीजिया अफसेंटिज्म या आर्टिमीजिया एनुआ। इसकी बहुत सारी वेराइटी हिमाचल में पाई जाती हैं। ये भी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है इसमें। इसका प्रयोग वुंड हीलिंग के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए तथा मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे में मलेरिया, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज हैं। इसको एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया और उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो ऐसे अनेकों पौधे हैं जो भारतवर्ष में पाए जाते हैं। फिर एक और पौधा आज मैं स्पेशली इस कोरोना के रेफरेंस में आपके सामने ये बता रहा हूँ, ये कुकुमा ज़िडोरिया, इसका बोटेनिकल नेम है, कचूर जिसको कहते हैं। हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। अदरक की तरह इसकी जड़ें होती हैं, आप देख रहे हैं। ये जो भी ठंड लगती है कहीं भी, चाहे निमोनिया हो, चाहे वैसे ठंड लगी हो, जॉइंट पेन्स हो, इसका प्रयोग आम लोग अपने घरों में करते हैं। सर्दियों में खासकर ऐसे लोग जो कि बर्फ के बीच निकल के या ज्यादा ठंड में
काम करने के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता है, वो इस कचूर का एक टुकड़ा अपनी जेब में रखते हैं। अगर ज्यादा ठंड लगी तो थोड़ा सा टुकड़ा उसमें से काट के वो उसको चूसते हैं मुंह में और खा जाते हैं। इसी तरह छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता है, तब भी इसका प्रयोग मात्रा निर्धारित मात्रा के अनुसार किया जाता है। तो ऐसी अनेकों औषधियां हैं जो आयुर्वेद में वर्णित है। आंवला तो हम सब जानते हैं, त्रिफला है, हरड़ बेड़ा आंवला, हम इसकी इंपॉर्टेंस भूल गए हैं। हम जब आम भाषा में बात करते हैं तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई तो चलो त्रिफला चूर्ण ले लो, और वो भी एक बहुत लाइटर वे में इसका हम कई बार बात कर लेते हैं। तो जबकि त्रिफला तो इतना इम्पोर्टेंट है, इससे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, तथा बहुत सारे विटामिन्स, कैल्शियम तथा मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। ऐसा बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग इसका नियमित प्रयोग करते हैं, पेट साफ करने के लिए नहीं परंतु एज ए टॉनिक। तो अलग अलग मौसम में इसको अलग अलग चीजों से प्रयोग करने का विधान हमारे यहाँ बताया गया है कि कभी इसको शहद के साथ प्रयोग करना, कभी शक्कर के साथ प्रयोग करना, कभी सेंधा नमक के साथ प्रयोग करना, कभी गर्म पानी से करना। तो ऐसा प्रयोग जो नियमित करते हैं, ऐसे लोगों में कैल्शियम और दूसरे विटामिन की मात्रा बहुत ही अच्छे लेवल पे रहती है। तो इसको एक जनरल टॉनिक के तौर पे प्रमोट किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ठीक करना तो एक बहुत ही सेकेंडरी इसका काम है। इस तरह सदाबहार के बारे में मैंने आपको बताया। इसके फूल दो तरह के होते हैं, गुलाबी और साथ में सफेद। जो सफेद वाला है उसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। फिर मुलट्ठी के बारे में बहुत चर्चा है, मुलट्ठी भी में स्टेरॉइड होता है, तो और बहुत सारी कंडीशंस में, वायरस में भी इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए भी और एसिडिटी को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा के बारे में तो हम सब जानते हैं, अधिक नहीं बोलूँगा। अभी परसों की एक समाचार पत्र छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप सबने भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी बॉम्बे जो है, वहाँ के साइंटिस्टों ने, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उनके अंदर, उन्होंने रिसर्च किया है कि जो कॉमन किचन में यूज होने वाले स्पाइसेस हैं उसके माध्यम से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। उन्होंने लैब में सिद्ध कर दिया है। उन्होंने स्वैब के माध्यम से उस वायरस को लिया और उसको लेबोरेटरी में उसके ऊपर अलग अलग जो हमारे स्पाइसेस हैं उनका प्रयोग किया, और उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर देखा कि वायरस जो है मर जाती है। ये बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ी रिसर्च है। भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि भारत में इतनी अच्छी रिसर्च हुई है, और मैं समझता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे जैसी संस्थाएं और भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो जल्दी ही हमें बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव खबर मिलेगी कि आयुर्वेद के माध्यम से कोविड के लिए भी दवाई निकल गई है। तो कहने का भाव यह है कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है आयुर्वेद के लोगों का बहुत अच्छा है। इसमें आयुर्वेद, अब वो नाड़ी पकड़ के मरीज देखा और पुड़िया में या गोली दवाई दे दी, वो जमाना चला गया। आज कोविड जैसी जो चैलेंजेस हैं आने वाले समय में और भी हमारे सामने आने वाले हैं। बहुत सी गंभीर बीमारियां आने वाली हैं। पोल्यूशन रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, आ रही हैं। दिल्ली जैसे शहर में पोल्यूशन के कारण अधिकतर जो छोटे बच्चे हैं उनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, उनको रखा जाता है। तो ऐसे इस तरह के चैलेंजेस को देखने के लिए हम सिंपल एक डिग्री लेकर यदि हम सोचें कि हम क्लिनिक कर लेंगे या ज्यादा सरकारी नौकरी ले लेंगे तो हमारा रोजी रोटी तो चल जाएगा, लेकिन जो आयुर्वेद के जो पोटेंशियल है उसके माध्यम से हम इस समाज को तथा हेल्थ के फील्ड में, आरोग्य के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसके लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। हम सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनेंगे। जो विद्यार्थियों से खासकर मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर तो एक पार्ट हो गया, उसके अलावा के अच्छे आप मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं, आप डाइट एडवाइजर बन सकते हैं। आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर काफी बल दिया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, उसका जो संख्या है पिछले 15-20 सालों में दुगनी हो गई है। डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, किडनी फेलियर है। तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो जिनसे बचा तो जा सकता है, लेकिन इसका जो उपचार है या इलाज है बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत महंगा भी है और बहुत कष्टदायक भी है। तो हम लोगों को अच्छी डाइट के बारे में बताएं, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएं, उनको अपने आसपास जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसकी जानकारी हम दें। हम अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की में भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना सकते हैं, आप कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं,
न्यूट्रिशन की दवाइयाँ बना सकते हैं आप फ्रेग्रेंस एरोमेटिक प्लांट से परफ्यूम्स और जो ड्यूज वगैरह आजकल आते हैं नेचुरल, वो बना सकते हैं। हम हेल्दी फूड्स बना सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट बना सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है, हम आयुर्वेद के छात्रों के आगे बहुत अच्छा, बहुत बड़ा भविष्य है। इसको एक एक मिनट हमको इसका प्रयोग करना है। मैं स्टूडेंट्स को खासकर कहना चाहूँगा कि हम सोचते हैं कि सिलेबस हमारा ये है तो इसमें हम पढ़ के और कुछ छोड़ भी देंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे। लेकिन जब कल कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा जिसको उस चैप्टर की बीमारी होगी जिसको आपने तैयार नहीं किया था एग्जाम के लिए, आप उसको क्या कहेंगे कि मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। तो कहने का भाव ये है कि हमें बिल्कुल ध्यान लगाकर जो टीचर्स क्लास में बोल रहे हैं डे टू डे उसके नोट्स बनाने हैं और कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। खासकर एनाटॉमी के बारे में, क्योंकि आज शरीर रचना के बारे में ही आपका जो सेमिनार हो रहा है, वेबिनार शुरू हो रहा है, तो एनाटॉमी तो शरीर का हर एक अंग जो है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सप्लाई है, मसल्स हैं, दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनका सही जानकारी आपको होगी तभी आप इंजेक्शन लगा पाएंगे। कभी आप कहीं स्टिच लगाना होगा तो आप किसी नर्व को नहीं उस स्टिच में बांध देंगे। तो इस तरह का कहने का भाव ये है मेरा कि बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को अपना पूरा समय देकर, चाहे एक्स्ट्रा समय दे हमें पढ़ाई के लिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। टीचर्स के लेक्चर को भी सुनना है, अपने नोट्स भी बनाने हैं, प्रैक्टिकल भी करना है हमको, साथ में ग्रुप डिस्कशन करनी है। कोई भी टॉपिक के ऊपर मैं अपने जो आपकी फैकल्टी के टीचर्स हैं, मुझे आशा है ग्रुप डिस्कशंस के माध्यम से भी वो एजुकेशन ट्रांसमिट कर रहे होंगे। तो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से 2-3 अपने फैकल्टी मेंबर्स हो गए, बाकी स्टूडेंट्स हो गए, और उसमें स्टूडेंट्स को अधिक बोलने का मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याएं भी उसमें डिस्कस करें, या उनके पास कोई अच्छी जानकारी है वो भी पॉइंट अपना रख सकते हैं। उनको बोलने की अभ्यास भी होगा, अच्छी बात वो कर पाएंगे और एक अच्छे वक्ता भी, कल को टीचर भी अच्छे बन सकते हैं। तो कहने का भाव ये है मेरा, स्टूडेंट से भी खासकर मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे, बाद में जाके आपको कई बार पछताना ना पड़े, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूँगा। बातें बहुत हैं, आगे समय आयुर्वेद के पक्ष में बड़ी तेजी से अच्छा आ रहा है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना है, उसके लिए हमको इक्विप करना है। हम चाहते हैं कि हमारे आयुर्वेद के जो ग्रेजुएट्स, वो कोरोना जैसी महामारी जब आई है तो उसमें हम बॉर्डर लाइन के ऊपर बाहर खड़े होकर, या जो हमारे बैरियर्स हैं स्टेट में आने वाले, वहाँ खड़े होकर ड्यूटी ना दें, बल्कि एक्चुअल फ्रंट लाइन में काम करते हुए वो एक आयुर्वेदिक अपनी जो विज्ञान उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, उसके माध्यम से सीधे बीमारी से टकराएं, उसका मुकाबला करें, उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for gracing today's event with your presence. That was indeed motivating and extremely informative. We are so honored and privileged to have you as team dignitaries whom we like to appreciate now. Thank you, sir. Thank you very much. Well, a dream doesn't become reality by magic. It takes sweat, it takes determination, and it takes hard work. It's a belief endorsed by Engineer Purushottam Sharma sir, Managing Director, Shiva Group of Institution and Shiva Ayurvedic Medical College and Hospital, Chandpur, Bilaspur. He has always been our source of inspiration and motivation. It's my privilege to welcome you, sir, for the vote of thanks. Please address the gathering, sir. सर्वप्रथम सबको नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम शर्मा, सेक्रेटरी शिवा एजुकेशन सोसाइटी तथा प्रिंसिपल तथा स्टाफ शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तरफ से आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सर का, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर CCIM हैं, मैं सोसाइटी की तरफ से तथा सारे स्टाफ तथा बच्चों की तरफ से इनका तहे दिल से तथा हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने बड़े बिजी शेड्यूल से
जो ये हमने एक नेशनल लेवल का इवेंट एनाटॉमी के ऊपर जो हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, आपने उसमें शुरुआत में जो अपने यहाँ एक मोटिवेशनल लेक्चर जो हमारे आयुर्वेदा के टीचर और जो हमारे अभी डॉक्टर बनने जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उनको आपने एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदा का क्या फ्यूचर है और हमारे हिमाचल और पूरे भारतवर्ष में किस किस तरह की औषधीय वनस्पति जो है अवेलेबल है, और आज के कोरोना के टाइम में भी आयुर्वेदा ने अपना पूरा वर्ल्ड में जो एक अपना परचम लहराया है। मेरे को ये बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे माननीय श्री JP नड्डा जी का घर हमारे बिलासपुर में ही है, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनके भी घर पे जो है मतलब एक काढ़ा की डिमांड की गई, तो मैंने आयुष मंत्रालय द्वारा जो प्रमाणित काढ़ा है उसको वहाँ पे पहुँचाया। और हमारे यहाँ पे जो शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, हिमाचल सरकार ने उसको एज ए कोविड डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे मरीज आज तक मेरे ख्याल में राउंड अबाउट कोई 70 या 80 मरीज पॉजिटिव आज तक आए, और सभी मरीज जो है उनकी जो डेली रूटीन है कि उनको सुबह जो है योगा कराया जाता है, जो कि हमारे ही आयुर्वेदा की एक उत्पत्ति है, और प्राणायाम उनको कराया जाता है। बाद में उनको जो है ये सारे आयुष काढ़ा वगैरह उनको पिलाया जाता है जो सुबह और शाम, और सब लोग जो है एक इस कोरोना को हरा के अपने घर में बड़े खुशी से चले गए हैं। और जितने भी अभी 10-12 लोग यहाँ पे और रह रहे हैं उनको भी इसी पद्धति से ठीक किया जा रहा है। मैं अंत में दोबारा अपने प्रिंसिपल तथा स्टाफ तथा जो बाहर से इस इवेंट को सफल बनाने के लिए जो जुड़े हैं, मैं उनका भी तहे दिल से जो है बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये सीरीज जो है मेरे ख्याल में मैं देख रहा था कि 8 इसमें हमारे जो स्पीकर हैं जो अपने अपने वक्तव्य देंगे। इसमें अंत में मैं दोबारा से डॉक्टर राकेश पंडित जी का बहुत तहे दिल की से उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम इस नेशनल वेबिनार को सफल बनाने में अपना टाइम दिया। सर, आपका इसी तरह से हमारे को आगे भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब भी सर हमारे को आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी तो हम उसी टाइम आपको सर आपसे फोन पे संपर्क साध के या किसी भी तरह से करके आप हमेशा, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारा और हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे टीचर का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Let us be grateful to people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. I deem it a great honor and privilege to propose the thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty Lord Dhanvantari and Lord Shiva for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our special guest, Vaidya Rakesh Pandit sir, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. Our MD sir, Engineer Purushottam Sharma, for his words of encouragement. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and continuous support. I thank our principal, Dr. Harsha NM, for his unstinted support for this function, for arranging such an insightful, intuitive web conference and giving me an opportunity to host this inaugural session. I would like to thank my colleagues for their support and my students for being such a silent audience, such a disciplined audience. I also wish my good luck to Department of Rachna Sharir for the upcoming guest lecture session to enrich BMS students with ocean of knowledge. I would request Dr. Anup sir to please address the students and to share the detail regarding the this web conference.
For tomorrow, the first session will be starting. Dr. Sharath S.G., Associate Professor, HOD, Department of Rachana Sharira, Amrita School of Ayurveda, Kerala, will be dealing with the topic Anatomy of Urinary System from 11:30 a.m. to 1 p.m. I request and appeal all students to take advantage of the session and enhance your knowledge. Thank you all. Once again, I thank you all for your attention. Thank you so much.